चलिए जी। ओके मैम। वर्क वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। हाँ जी बेटे, तो वी आर डूइंग दीज डेज वी आर डूइंग चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर राइट नाउ वी आर एट दिस पार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स. तो in India, as we have already read, variety of soils are found here, and one of them is this alluvial soil. Very important soil, very widely found soil in India, and it's very fertile also. Fertile in the sense means a lot of agricultural crops they can be grown in this alluvial soil. So as you can see in this map, on that day also we have seen this whole of this light green color. So this covers the northern plains, some part of West Bengal, these coastal areas, some part of this Gujarat, some part of Assam. So all these are, they show the parts of regions of alluvial soil, very fertile soil. ठीक है, अब इसमें से हमने क्या किया था कि these soils are formed due to the deposits brought by इंडस रिवर. ये इंडस रिवर इधर से आती है, इसका अभी जो राइट नाउ फ्लो है दैट इज टूवर्ड्स पाकिस्तान, बट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस दे आर स्टिल देयर इन इंडिया. सतलुज, रावी, ब्यास, ये वाले पार्ट, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, दिस इज कवर्ड बाय इंडस रिवर सिस्टम. दिस मिडल पार्ट इट इज कवर्ड बाय गंगा रिवर सिस्टम. ठीक है, एंड दिस पार्ट from this side, this part of the country that is covered by Brahmaputra river. So all these rivers, when they come to the plains, so they bring a lot of sand, silt and clay with them, and due to the deposition deposit word से बना है, मतलब when that sand, silt and clay gets settled, so these plains have got formed. ये first para में we have been told. Then you can see in the second para it was told this, you can read there. Let just a second. ये वाला पैरा जो सेकंड पैरा है, दिस वन. So please read this para. Alluvial soils consist of various proportions of sand, silt and clay. As we move inland towards the river valley, soil particles appear somewhat bigger in size. And in the upper reaches of the river valley, near the places of break of the slope, these are coarse, and such soils are more common in Piedmont plains, such as Dwars, Chos and Terai. अब इस लाइन्स का पूरे का मतलब क्या है? पाइडमेंट का मतलब होता है डिफरेंट कलर्स. सो आई हैव टेकन फ्यू स्लाइड्स फॉर यू टू शो दैट विल बी एबल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड. जस्ट ए सेकेंड. यस, प्लीज सी दिस. दिस इज जस्ट एग्जाम्पलरी पिक्चर. ये माउंटेन्स है, तो माउंटेन्स के नीचे जहाँ सॉइल स्टार्ट्स, ये पार्ट, तो नाउ दिस पार्ट वेरीज इन कलर्स. ये तो चलो डायग्रामेटिकली पाई चार्ट की फॉर्म में इट हैज बीन मेड. ये ब्राउन कलर, यो ऐसे ब्राउन कलर के भी डिफरेंट शेड्स कैन बी देयर. सो दिस एरिया yes, but we were at this point. So Piedmont means the plains which are found just below the mountains. ये mountains as soon as their base comes, तो ये वाला जो part है that is called Piedmont plains. ठीक है, तो जैसे in reality this type of ये mountains जहाँ base आता है, finish होती हैं, या जहाँ से in other words mountain start होती है, we can say in both ways. So ये Piedmont plains है. ठीक, Piedmont का मतलब होता है of different colors. कि कहीं पर डार्क कलर हो सकता है, कहीं पर थोड़ा सा लाइट कलर हो सकता है. वेराइटी ऑफ कलर्स कैन बी फाउंड, एंड दे हैव डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अब वो कैसे हो सकता है, लेट अस सी. यस, नाउ यू जस्ट रीड दिस. यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये पाइडमोंट प्लेन्स दे आर नोन एज सच एज द्वार्स, चोस एंड तेराई. अब जो कंट्री का हमारा पार्ट है, इफ वी डिवाइड इन 3 पार्ट्स. Yes, Suhana, you have raised hand. What happened with it? Please unmute yourself and let me know. So now different parts of our country, you please see in your map which is given in the book. Please have a look at that. See, if we divide it in 3 parts, तो एक जो पार्ट है टुवर्ड्स दिस जम्मू कश्मीर साइड, उत्तरांचल साइड, एक ये पार्ट. एक जो पार्ट आता है नेपाल के नीचे, नेपाल और भूटान के थोड़ा सा नीचे, और एक पार्ट आता है टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्टर्न साइड. ठीक है, तो इन
ऑल दीज थ्री साइड्स, ये जो पाइडमोंट प्लेन्स हैं, दे आर नोन एज डिफरेंट नेम्स. जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड है, ये वाला जो पार्ट है हमारे कंट्री का, you see in your map in the book itself. मैं यहाँ से पढ़ देती हूँ. जो पंजाब हरियाणा वाली साइड पे पड़ता है, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, यू कैन सी सदर्न स्लोप्स ऑफ शिवालिक रेंज इन पंजाब हिमाचल प्रदेश हरियाणा हिमाचल प्रदेश आर ऑलमोस्ट डिवॉइड ऑफ फॉरेस्ट कवर. मतलब जहाँ शिवालिक माउंटेन्स खत्म होती हैं. इफ़ यू रिमेंबर इन 9th क्लास यू हैव रेड देयर आर 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयाज. ठीक है, हिमाद्री, मिडल हिमालयाज जिसको हिमाचल भी बोल देते हैं, एंड थर्ड वन इज शिवालिक. तो शिवालिक के नीचे जो एरियाज पड़ते हैं, जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, वहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा नहीं है, प्लेन सा ही एरिया स्टार्ट हो जाता है. तो वहाँ पर जो स्लोप्स हैं माउंटेन्स की, मतलब हिली है, वहाँ पर फॉरेस्ट नहीं है. दे आर हाईली डाइसेक्टेड बाय सीजनल स्ट्रीम्स कॉल्ड चोज. ठीक है, वहाँ पे जब जहाँ पर वो शिवालिक रेंज ओवर हो रही है, ख़त्म हो रही है, वहाँ से नीचे जो प्लेन स्टार्ट होते हैं, वहाँ पे बड़ी सारी सीजनल रिवर्स हैं. सीजनल रिवर्स इन द सेंस कि व्हेन देयर इज रेनी सीजन, तो दोज स्मॉल स्ट्रीम्स दे गेट फिल्ड विद वाटर. बट अदरवाइज ड्यूरिंग समर सीजन व्हेन देयर इज नो रेन, तो एट दैट टाइम दोज एरियाज बिकम डिवॉइड ऑफ वाटर रिवर. मीन्स प्लेन हमें वो दिखाई देता है, ज़मीन जो सॉइल है वो दिखाई देती है, एंड दैट कैन बी क्रॉस्ड ऑल्सो. पैदल चल के भी वहाँ से निकला जा सकता है. बट एज सुन एज द रेनी सीजन कम्स, देन दोज स्ट्रीम्स दे गेट फिल्ड विद वाटर. तो वो जो ऐसे जिसको हम बोल सकते हैं सीजनल रिवर या मौसमी रिवर्स जो होती हैं, जो शिवालिक के नीचे हैं, पंजाब हिमाचल के वाले एरिया वाली साइड पे, तो उन जैसे अपने यहाँ होशियारपुर वाली साइड पे, उनको चो बोला जाता है. ठीक है, तो ये प्लूरल में चोज उनको लिखा हुआ है. सो नेटवर्क ऑफ रिवर्स इन द नॉर्थ ऑफ प्लेन्स ज्वाइंटेड विद शिवालिक्स आर कॉल्ड चोज. तो पंजाब हिमाचल वाली साइड पे जो सीजनल रिवर्स हैं, जहाँ पे शिवालिक्स कम टू एन एंड, तो वहाँ पे वो जो पार्ट है सीजनल रिवर्स का, दैट इज कॉल्ड चो. उसके बाद जो हमारा कंट्री का, लेट मी शो अनदर स्लाइड. द्वार्स. द्वार्स किसको बोलते हैं ना, 2-3 नेम्स आर रिटन हियर. द्वार बोलते हैं एल्यूवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. मतलब एल्यूवियल सॉइल का जो प्रपोर्शन है, आई हैव सेंट फ्यू पिक्स इन योर क्लास ग्रुप ऑल्सो, यू कैन सी साइड बाय साइड इफ यू वांट. सभी जगह एल्यूवियल सॉइल में सैंड, सिल्ट एंड क्ले, दे आर नॉट इन सेम प्रपोर्शन. इक्वल प्रपोर्शन नहीं है. कहीं पर सैंड ज़्यादा है, कहीं पे सिल्ट ज़्यादा है, कहीं पे क्ले इज मोर. ठीक है, प्रपोर्शंस आर वेरिंग. So accordingly, द्वार्स जो होते हैं, दे आर द फ्लड प्लेन्स एंड फुट हिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालयस इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया. नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे जहाँ पे पड़ता है हमारा मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, वो वाली साइड, 7 सिस्टर्स. ठीक है, उस साइड पे जहाँ पर हिमालयन माउंटेन्स फिनिश होते हैं, जहाँ थोड़ा बहुत प्लेन एरिया पड़ता है. फुट हिल्स का मतलब माउंटेन का बिल्कुल नीचे वाला पार्ट जहाँ पे वो प्लेन के साथ मिलता है. तो इन दैट पार्ट इट इज़ कॉल्ड द्वार्स. ठीक है, फुट हिल का मतलब जहाँ माउंटेन अगर ज़मीन से स्टार्ट करें तो माउंटेन स्टार्ट होती है, उसकी हाइट बढ़ती है. ऊपर से अगर बोले तो माउंटेन फिनिश होती है, जैसे मर्जी आप बोल सकते हो. तो नॉर्थ ईस्ट साइड पे दोज पार्ट्स फ्लड प्लेन्स जो है, रिवर्स वाले जो आसपास बनते हैं, दे आर कॉल्ड द्वार्स. और तेराई क्या बोलते हैं, तेराई यू कैन सी, जैसे जो उत्तरांचल के नीचे, उत्तर प्रदेश में, नेपाल के नीचे जो पार्ट पड़ता है, तेराई इज ए बेल्ट ऑफ मार्शी लैंड. मार्शी होता है वेट लैंड एट द फुट्स ऑफ माउंटेन्स, एट द फुट ऑफ माउंटेन्स. विच माउंटेन्स? हिमालयाज इन नॉर्थ इंडिया. तो यहाँ पर ये जो हमारा पड़ जाता है, लेट मी शो ऑल्सो दिस. ये देखो, ये द्वार्स, ये देखो पेबल्स आर देयर, स्टोन्स आर देयर. बीच बीच में ये लेस डेप्थ वाली जो रिवर्स फ्लो करती हैं, ये बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, इनको क्रॉस भी किया जा सकता है. तो ये सारी द्वार्स की पिक्चर्स हैं. ऐसे ही लेट मी शो, ये देखिए, ये बड़ी लेस डेप्थ वाली रिवर्स ऐसे फ्लो करती हैं, ये आसपास पेबल्स हैं, इसकी डेप्थ वेरी लेस. तो ऐसे ये द्वार्स की पिक्चर्स हैं. आई हैव ऑलरेडी सेंड इन योर क्लास ग्रुप ऑल्सो. ये देखिए, यहाँ से यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, ये देखिए, ये रिवर है. ठीक, रिवर वैली. तो रिवर के आसपास ये देखिए, यहाँ से ये भी आगे करेंगे हम, खादर एंड खांगर. ये वाला जो पार्ट है, यहाँ देखो, ये माउंटेन्स है हिमालयस, उसके नीचे जो ये पेबल्स और स्टोन्स होते हैं, यू हैव रेड इन 9th क्लास ऑल्सो, दैट पार्ट इज कॉल्ड भाबर. भाबर के नीचे यहाँ ये स्टोन्स फिनिश होते हैं, थोड़ा बहुत ग्रीनरी स्टार्ट होती है, दैट पार्ट इज कॉल्ड तेराई. मार्शी लैंड, मतलब यहाँ से रिवर्स भी फ्लो करती हैं, तो ये पार्ट थोड़ा गीला होता है, यहाँ पे ग्रीनरी होती है, क्रॉप्स कैन बी ग्रोन हियर. ये यहाँ पर क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रो. ऐसे ही माउंटेन्स के ऊपर भी क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रो. तो ये पार्ट में क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, ये तेराई एरिया.
ऐसे ही यहाँ पे ये जो है रिवर के आसपास, नाउ सी इन योर नेक्स्ट पैरा, अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स एंड या कंपोनेंट, सॉइल्स आर आल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ एज। एज का मतलब कि कौन सी, जैसे हम बोलते हैं ना यंग इन एज या ओल्ड इन एज, तो ऐसे ही ये जो रिवर के द एरिया विच इज लाइंग जस्ट ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, ये ब्रिटिश सा एरिया, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड खादर। दीज आर द न्यूअर एल्यूवियम। न्यूअर एल्यूवियम मीन्स जब भी ये रिवर्स में फ्लड्स आते हैं, ओवरफ्लो होती हैं, दे जस्ट क्रॉस देयर बैंक्स, after that when water again comes to its original position, it again comes to its own flow। तो ये जहाँ ये जो मड सी जम जाती है ना, कीचड़ सा जो होता है, सैंड सिल्ट जो भी है, वट एवर मडी पार्ट, ये जो सेटलमेंट हो जाती है, और ये हर साल ही आता रहता है, जब भी फ्लड्स आते हैं तो ये इसी तरह से बन जाता है, दैट इज कॉल्ड न्यूअर एल्यूवियम। एक बार वो एक लेयर सी बन जाती है, नई मिट्टी की लेयर सी बन जाती है, ये इसको इस दिस पार्ट इज कॉल्ड खादर। रिवर के दोनों साइड्स पे ये बनता है, ऐसा नहीं कि ओनली ऑन लेफ्ट साइड और राइट साइड। दिस टेक्स प्लेस ऑन बोथ साइड्स बिकॉज व्हेन फ्लड्स कम तो दे जस्ट ओवरफ्लो टुवर्ड्स बोथ साइड्स, दोनों बैंक्स को क्रॉस करती हैं, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड खादर। बट एज वी मूव अवे फ्रॉम दिस पार्ट, as we move away from the banks of the rivers, either to this side or to this side, both, so then the clay या soil which is found there, that is called bhangar। bhangar means older alluvium, पुराना जो जमा हुआ है, जो मिट्टी सिल्ट सॉइल जम चुकी है, वो थोड़ी सी डार्क इन कलर होती है, ये लाइट इन कलर होते हैं, यहाँ पे ब्राउन इन कलर होता है, हल्का थोड़ा सा मतलब डार्क होता है, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड bhangar। Means just I want to tell you, means there are varieties of alluvial soils everywhere, it is not the same name is not there as per the this distance from the river, or as per the distance from the mountains, there are different names, different features, okay। Then coming to last para, you can see in your book, ये वाला पैरा, this para, please underline this para, very important here, features or properties of alluvial soil have been given। So when in the paper you get the question what are the features of alluvial soil, then we don't have to tell these are the locational points। Yes better, today lot of interruption is there, anyhow we have to manage, so let us try to complete this। So in this para various properties have been told, तो क्या होता है in this alluvial soil, this soil contains adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime। So these are the names of the chemicals which are found in the alluvial soil, and due to the presence of these elements, these chemical elements, this soil becomes very fertile for various crops। मतलब almost all types of crops can be grown here, but especially few names have been given, and which are those crops? Wheat, paddy, sugar cane, pulses, cereal crops। cereal crops कौन सी होती हैं? जो staple crops होती हैं, जो ग्रेन वाली क्रॉप्स होती हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मेज है, मतलब ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ ग्रेन्स कैन बी ग्रोन हियर, ठीक है। सो दीज आर द फीचर्स, रेस्ट यू कैन सी रीड देयर कि द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ द कंट्री वेयर दिस एल्यूवियल सॉइल इज फाउंड, दैट इज वेरी highly cultivated and very densely populated also, because most of the people, when we say in our country they depend on agriculture, so where are they living? Those most of people, they are living in the northern plains of the country। Why? Because this soil is the best soil for cultivation, and along with the fertile soil there is a huge network of these rivers also which are flowing from Himalayas। last class mein you have read perennial rivers हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, देयर ट्रिब्यूटरीज है, इंडस रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब ये पार्ट में देयर इज नो स्केर्सिटी ऑफ वाटर। तो ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिवर वाटर, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल सॉइल, यहाँ पे ह्यूज पॉपुलेशन इज लिविंग एंड दे आर depending mainly on agriculture, okay। Now coming to this black soil, now black soil का क्या है? You can see in the map also, let us see where is this black soil found।
ये वाला जो पार्ट है, यू कैन सी द इंडेक्स फ्रॉम योर बुक, दिस लाइट्स ग्रे वाला ये कलर है. नाउ लेट अस सी विच स्टेट्स आर देयर. ये पार्ट जो लाई करता है मेनली ये गुजरात, महाराष्ट्र, सम पार्ट ऑफ कर्नाटका, इधर से सम पार्ट ऑफ तेलंगाना कह सकते हैं, या आंध्र प्रदेश भी है, ये ऊपर करके तेलंगाना है, एंड सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश. अगर मेन स्टेट्स कहनी हो तो वी कैन से मध्य प्रदेश, दिस गुजरात, महाराष्ट्र, ये सम पार्ट ऑफ कर्नाटका. तो ये जो पार्ट है अब ये कहाँ पर बना हुआ है, यू आई होप यू रिमेंबर इन 9th क्लास वी हैव रेड, ये यहाँ से हमारे मालवा प्लेटो के नीचे से दिस सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री स्टार्ट्स, और यहाँ पर क्या है, डेक्कन प्लेटो है. ठीक है, ये सेंट्रल हाईलैंड्स, उसके नीचे यहाँ पर आ जाता है डेक्कन प्लेटो. तो ये सारे पार्ट में ब्लैक सॉइल इज फाउंड. ठीक, ब्लैक सॉइल का मतलब जो कलर है ना उसका, जो टेक्सचर तो नहीं कहेंगे, टेक्सचर तो क्ले ही होता है, बट उसकी जो कलर की शेड पड़ती है, ऐसा नहीं कि जेट ब्लैक कलर है, ऐसा नहीं है. मतलब तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो डार्क सा कलर बनता है. आई हैव शोन द पिक्स ऑल्सो, लेटर ऑन यू कैन सी. तो ये पार्ट में है. नाउ ये ब्लैक सॉइल में क्या है, इट इज मेड अप ऑफ दिस, यू कैन रीड इन द पैरा ऑल्सो, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, दे आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन, और यहाँ पर इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोल देते हैं. ये 1 मार्क के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ब्लैक सॉइल इज आइडियल या वेरी गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन क्रॉप. ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉटन इन एरियाज में होती है. एंड सेकेंडली ये जो लावा होता है ना, आपको याद होगा 7th क्लास में यू हैव रेड, तो जब जो लावा वॉल्केनोज का लावा सेटल डाउन होके उसके करके ये पार्ट बना हुआ है, ये हमारा जो डेक्कन प्लेटो है उसके करके बेसाल्ट रीजन है ये सारा. तो लावा के कूल डाउन होने के बाद ये जो सॉइल बनी ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, लावा के एकदम ऊपर तो कल्टीवेशन नहीं हो सकती है इवन कूल डाउन के ऊपर भी, बट आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स वो जो सॉइल की फॉर्मेशन हुई है यहाँ पर नेचुरली, दैट इज ब्लैक सॉइल. ठीक है, तो नाउ दीज आर फाउंड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ये वाला ये पार्ट, सम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ये वाला पार्ट. ठीक है, सो मेन व्हेन वी हैव टू टेल द नेम्स ऑफ मेन स्टेट्स, तो वी शुड कवर दिस साइड ओनली. ठीक है जी. अब इसमें क्या होता है, दीज आर मेड अप ऑफ क्लेई मटीरियल. क्लेई होता है चिकना सा मटीरियल, बहुत मतलब बड़ा सॉफ्ट फाइन जो टेक्सचर होता है, दैट इज कॉल्ड क्लेई मटीरियल. तो इट हैज सम प्रॉपर्टीज ऑल्सो, यू कैन सी इन द नेक्स्ट पैरा. ये वाले पैरा में ये पैरा दिया हुआ है, इसका नेक्स्ट पैरा ये वाला पैरा, यू कैन मेक द पॉइंट्स हियर. तो व्हाट इज गिवन, this soil is very rich in nutrients such as calcium carbonate, magnesium, potash, lime. ये सारे यहाँ पे बड़ी in good quality these minerals are found, these nutrients are found. and और यहाँ पर poor क्या है, poor in phosphoric content. जो alluvial soil है that is rich in phosphoric content, but ये जो black soil है that is poor in phosphoric content, but other elements are found there. ठीक. एंड सेकेंडली ऊपर क्या दिया हुआ है, यू कैन सी क्लेई मटेरियल एंड वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, कि जब भी रेन आती है तो इस क्लेई सॉइल के अंदर रेन को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है दैट इज़ वेरी हाई. तो ये वेट रहती हैं काफ़ी टाइम तक. बट अनदर फीचर इज ऑल्सो देयर, यू कैन सी दे यहाँ पे दे डिवेलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प्स इट इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल. अब इसका मतलब क्या है कि जब तो होता है रेनी सीजन तो ये सॉइल बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है, बिकॉज लॉट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज डन बाय दिस सॉइल ड्यू टू इट्स फाइन क्लेई मटेरियल. बट एज सुन एज हॉट समर सीजन कम्स देन दैट वाटर गेट्स इवेपोरेटेड एंड दिस सॉइल डिवेलप्स डीप क्रैक्स, बिल्कुल सूख जाती हैं. आपने जैसे बुक में भी पीछे डायग्राम भी दिया हुआ है, एकदम से ड्राई हो जाती हैं. और जो क्रैक्स के करके बीच में देयर इज सर्कुलेशन ऑफ एयर, इरेशन. जैसे जब उसमें आपने कई बार ही देखा होगा घरों पे भी कोई प्लांट्स होते हैं, तो वो प्लांट्स में अगर मिट्टी एकदम सूख जाती है तो एकदम पानी डालो तो बबल्स से निकलते हैं. वो बबल्स क्यों निकल गए, क्योंकि उसके बीच में एयर की प्रेजेंस थी. तो ऐसे ही ये सॉइल में जब समर सीजन में क्रैक्स होती हैं, उसके बाद जब फर्स्ट शावर्स आती हैं रेनी सीजन की, तो वहाँ पर वो एकदम वेट हो जाता है, बबल से निकलते हैं और एकदम फिर वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी वो बढ़ जाती है. मतलब ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है. ठीक है, एंड लास्ट लाइन में ही दिया हुआ है, वर्क इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वर्क, दीज सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफ़िकल्ट टू वर्क. मतलब जब बहुत ज़्यादा